Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, I hope you all are safe and fine. Today, I am going to teach you English language, chapter number 4, Noun and its kinds. This is part 1 of this video and it is on page number 27 and 28. So, let's start it. Chapter number 4 and chapter name is Noun and its kinds. So, as I told you in previous chapter about the parts of speech, and total we have 8 parts of speech. So today we will learn about the first part of speech, noun. And today I am going to teach you about the noun and its kinds. So first of all, we need to know that what is noun. As you all know that noun is the naming word. Everything in this word has a name and that name is a noun. Now we will understand it by the definition. So, noun is a naming word. Noun क्या है? एक naming word है. It names a person, place, animal or thing. यह है किसी person means व्यक्ति, place means स्थान, animal means पशु and thing means वस्तु का नाम होता है. So basically, noun is the name of a person, place, animal or thing. Now let's understand it by some sentences. So the first sentence is Sneh is a good girl. Sneh एक good girl है means अच्छी लड़की है. So here Sneh is a person name, girl name. So ये क्या है? Noun है. Sneh is a noun. Second sentence is Kanpur is famous for leather goods. कानपुर लेदर के सामान के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है. So here Kanpur is a place name. So Kanpur is a noun. Third sentence is giraffe has a long neck. जिराफ की लंबी गर्दन होती है. Here as you can see in this picture, giraffe has a long neck. So here giraffe is an animal name. So giraffe is a noun. Fourth and last sentence is child plays with a toy. बच्चा खिलौने के साथ खेलता है. Here toy is a thing name. So toy is a noun. So noun is the name of a person, place, animal or thing. Next is kinds of noun. Nouns are the following 5 kinds. Noun के निम्नलिखित 5 kinds हैं, 5 प्रकार हैं. Common noun, collective noun, proper noun, abstract noun and material noun. Let's start it with common noun. It stands for all things or person of one kind or same class. यह उन सभी things means चीज़ों, पर्सन मीन्स व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है जो एक ही काइंड, एक ही प्रकार और सेम क्लास से बिलोंग करते हैं. When used in the middle of a sentence, it does not begin with a capital letter. जब इसका यूज़ किसी सेंटेंस के मिडल में मीन्स बीच में किया जाता है तो इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉय इज रीडिंग अ बुक. लड़का एक किताब पढ़ रहा है. हेयर बॉय एंड बुक इज अ कॉमन नाउन. सेकेंड सेंटेंस इज द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल. लड़की स्कूल जा रही है. हेयर गर्ल एंड स्कूल इज कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. It stands for a group of similar things, person or places. इसका यूज़ है वह किसी भी चीज़ का, व्यक्तियों का या फिर स्थान का ग्रुप के लिए किया जाता है. मीन्स इसका जो यूज़ है वो एक जैसी चीज़ों, पर्सन एंड प्लेसेस के ग्रुप के लिए किया जाता है. इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑल्सो नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर व्हेन यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. इसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता जब इसका यूज़ किसी भी सेंटेंस के मिडल में मीन्स बीच में होता है. एग्जाम्पल. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्पेक्टेटर्स वर एंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द पब्लिक पार्क. दर्शक सार्वजनिक पार्क में क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे
thing. So here spectators is a collective noun. Second example is she presented me a beautiful bouquet of fresh flowers. उसने मुझे एक ताजे फूलों का गुलदस्ता या फिर बुके भेंट किया. सो हियर बुके इज अ कलेक्टिव नाउन क्योंकि यह क्या है, बुके फ्लावर्स का एक ग्रुप है. सो बुके इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. It stands for a particular person, place और thing. इसका जो यूज़ है किसी particular person, place और thing के लिए किया जाता है. It always begins with a capital letter. यह हमेशा capital letter से लिखा जाता है या फिर इसका जो शुरुआत है वो हमेशा capital letter से ही होती है. Example. First example is Delhi is the capital of India. Here Delhi and India is a proper noun. Delhi क्या है, इंडिया की राजधानी है. So Delhi and India क्या है, proper noun है. Next example is Sumedha sings a sweet song. Sumedha एक मीठा गाना गाती है. So here Sumedha is a particular person name. So यह क्या है, प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट स्टैंड्स फॉर अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सन और थिंग. यह किसी भी वस्तु की या फिर व्यक्ति की क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, स्टेट मीन्स स्थिति एंड कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा के लिए यूज किया जाता है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ट और थॉट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फील मीन्स महसूस किया जा सकता है और सोचा जा सकता है. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड as इट हैज़ नो साइज, शेप, वेट और कलर. इसे देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता क्योंकि इसका ना तो कोई साइज होता है, शेप होता है, वेट होता है और कलर होता है. मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फील किया जा सकता है और सोचा जा सकता है. इसे छुआ या फिर देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई साइज नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई वेट नहीं होता और इसका कोई कलर नहीं होता. एग्जाम्पल्स. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. हियर ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल इज रोज स्मेल्स स्वीट. गुलाब से मीठी खुशबू आती है. हियर स्वीट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट एंड लास्ट इज मटेरियल नाउन. इट स्टैंड्स फॉर मटेरियल, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स ऑफ विच थिंग्स आर मेड. इसका जो यूज़ है सामग्री, मटेरियल्स मीन्स सामग्री, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ और इंग्रेडिएंट्स के लिए किया जाता है जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं. मटेरियल नाउन मीन्स कोई भी सामग्री, पदार्थ और इंग्रेडिएंट्स के लिए होता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं. एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज पुट अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन माई सूप. मीन्स मेरे सूप में थोड़ा सा नमक डाल दो. सो हेयर सूप इज अ मटेरियल नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स. हेयर जो दीवार है वो ईंटों से बनती है. हेयर ब्रिक्स इज अ मटेरियल noun. So students, I hope you understood this. The remaining chapter we will discuss in next video. Thank you. Have a nice day.